الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آدرنیہ سجنوں، یہ ہمارے سوبھاگ کی بات ہے کہ ہم آپ کو سمبودھت کر رہے ہیں اور ایک مہتوپورن وشے ہمارے سمکش ہے، اسی وشے کے سلسلے میں کچھ وچار آپ سامنے رکھیں گے۔ وہ وشے ہے بہودیوواد یا شرک جسے کہتے ہیں۔ ایک دھارنا تو ایکیشور باد کی ہے، اس کے وپریت دوسری دھارنا ہے بہودیوواد، ایک دوسرے کی بالکل اگینسٹ ہے۔ دونوں دھارنائیں ایکتر نہیں ہو سکتی۔ رات اور دن کبھی ایکتر نہیں ہوتے، سیاہی اور سفیدی ایکتر نہیں ہوتے، بلندی اور پستی دونوں ایک جگہ نہیں ہوتے۔ یہ دونوں دھارنائیں ایک دوسرے کے وپریت ہیں۔ قرآن کی ایک خوبی یہ ہے، ایک کام یہ کرتا ہے قرآن، مصدقا لما بین یدیہ، سچائیاں جس روپ میں بھی ہوں پہلے سے ان کی وہ پشٹی کرتا ہے۔ ایک کام تو قرآن یہ کرتا ہے، انہیں پرامانکتا پردان کرتا ہے، انہیں اتھینٹک بناتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جو متبھید پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر، ان متبھیدوں میں فیصلہ کرتا ہے کہ حق کیا ہے، ستیہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی ضرورت اس کی ہے کہ طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، طرح طرح کے بول بولے جا رہے ہیں، اس میں ستیہ کیا ہے۔ ایک کام یہ قرآن کرتا ہے۔ تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ ستیہ کو پورنتا پردان کرتا ہے، اسے کوئی کمی نہیں رہنے دیتا وہ، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اس لیے ملتوی نہیں کرتا وہ۔ تو قرآن کے روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہاں کتنی سچائی ہے اور کہاں گڑبڑی آ گئی ہے۔ جس طرح سے ایک صراف کے پاس کسوٹی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی نگاہ خود کسوٹی ہوتی ہے، لیکن نہیں، کسوٹی کے اوپر دیکھ لیتا کس کر کہ سونے میں کتنا قرات سونا ہے، کتنا ملاوٹ ہے، کیا ہے۔ قرآن کی حیثیت ایک کسوٹی کی ہے اور بڑے کام کی کسوٹی ہے۔ پورے اطمینان سے ہم کھنگال سکتے ہیں دنیا کے لٹریچر میں، ساہتیہ میں، اس میں کتنا ستیہ ہے، کتنا استیہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ نظریہ پرلوکواد کا یہی ستیہ نظریہ ہے، نظریہ آخرت، یوم الجزا، کہ ایک دن آئے گا جبکہ لوگوں کو حساب لیا جائے گا، لوگ اپنے کرموں کا پھل پائیں گے۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے جب ہمارے بارے میں انتم فیصلہ ہوگا، یا تو ہم بنسٹ ہو جائیں گے، تباہ کر جائیں گے، یا ہمیں اونچا پد پراپت ہوگا، یا ہم سفل ہوں گے یا اسفل ہوں گے۔ یہ پرلوک بات کا نظریہ جو ہے قرآن پیش کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جتنے نظریات ہیں سب غلط ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ریبرتھ ہو، چاہے آواگمن ہو، چاہے کوئی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرلوک بات کا نظریہ ویدک کال میں پورے تو ابھرا ہوا ہے۔ ویدوں میں ایک پرلوک بات پایا جاتا ہے، ڈیٹیل۔ ویدوں میں برزخ کا نظریہ پایا جاتا ہے، حور و غلمان۔ ہمارے لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ایک سندھیا لوک ہے، وہ ایک پرلوک ہے، بیچ کا برزخ ہے، وہاں بالکل قرآن کے مطابق ہے وہ نظریہ پرلوک بات کا۔ اسی طرح سے ایکیشور بات کا نظریہ جو ہے پایا جاتا ہے ویدوں میں، توحید نظریہ پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے
کہ ایکم ज्योतिर बहुधा विभात, रोशनी तो एक है, ज्योति एक है, मुख्तलिफ जलवे उसके हों कहा जाता है। वेदों में साफ साफ कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंत, सत तो सच्चाई तो एक है। ज्ञानी मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं उसको रहमान भी कहते हैं, रहीम भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम, जमील भी कहते हैं उसको, गफ्फार भी कहते हैं, लेकिन वो सच्चाई जो है एक है। बल्कि वेदों में यहां तक आता है न तस्य प्रतिमास्त, उसकी प्रतिमा, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। मूर्ति बनाकर तुम उसको सीमित कर दोगे, महदूद कर दोगे। तुम अपनी आत्मा की मूर्ति बना नहीं पाते, परमात्मा की मूर्ति बनाते हो, तो उसका अनादर होगा, आदर नहीं होगा, भटकाओगे तुम, परमात्मा के निकट नहीं लाओगे, दूर करोगे तुम। वेदों में साफ साफ पाया है कि उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, प्रतिमा। तो मैं कह रहा था कुरान जो है इसकी तस्दीक करता है। बहुदेववाद का नजरिया, जिसे शिर्क कहते हैं, ये भी बड़ा भयंकर नजरिया है। यूनानी साहित्य देखिए, यूनान में शिर्क बढ़ा हुआ था, तरह तरह के वेनेस, अपोलो, क्या क्या देवी देवता का वहां प्रचार था। बहुत उनकी कहानियां भी मौजूद हैं, किताबों में मौजूद हैं। अरबों में लात उज्जा, इलाह खुदा है तो लात बना दिया, मोहनस बनाया। देवियों को बड़ा प्रचुरता थी उनकी। लात खुदा अजीज है तो उज्जा बना दिया, मोहनस उसका, स्त्रीलिंग बना दिया उज्जा। मन्नान है तो मनात बना दिया। उनके यहां देवी, बल्कि फरिश्तों को कहा खुदा की बेटियां हैं, ये बेटियां करार दिया। और भारत में तो हम जी रहे हैं, यहां तो जो आप देख ही रहे हैं, यहां तो कोई गिनती करना मुश्किल है, कितने पूज्य हैं, कितने आराध हैं, कितने उपास हैं। तो ये बहुदेववाद या शिर्क जो है, ये एक भयंकर रोग है, एकेश्वरवाद के अगेंस्ट है। दोनों चल नहीं सकते साथ साथ, फैसला करना होगा। कुरान ने फैसला सुना दिया कि एकेश्वरवाद नजरिया सही है, इसके खिलाफ जो है वो असत्य है, गलत है। अब आगे आप विचार करें कि एकेश्वरवाद, एक ईश्वर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सत्ता जो सर्वशक्तिमान है, अपार शक्ति का मालिक है, वो सामर्थ्यवान है, वो इसके लिए अपार शक्ति चाहिए, सदा से है वो, हुल आखिर व ज़ाहिर व बातिन, वही याद है, वही अंत है, वही व्यक्त है, वही अव्यक्त है। ऐसी सत्ता जहां अज़ल व अबद एक हो, जो समय और काल देश से परे हो, टाइम और स्पेस से बियॉन्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस हो, ऐसी सत्ता अपार शक्ति की मालिक होगी। जब ही वो हमेशा रह सकती है। हमेशा से रहने के लिए अपार शक्ति चाहिए। परमात्मा वो है जिसका कोई क्रिएटर नहीं है, कोई रचयिता नहीं है, स्वयंभू हमेशा से है वो। इसलिए उसके लिए सवाल पैदा नहीं होता कि उसका बनाने वाला कौन है। जो चीज बनाई गई होती है वहां सवाल पैदा होता है कि कौन बनाने वाला है। ताजमहल के बारे में प्रश्न उठता है कि ताजमहल का मेमार बनाने वाला कारीगर कौन था, कहां का था, ईरान का था कि भारत का था कि दोनों जगहों के थे। इसे ताजमहल कभी जमाना ऐसा गुजर नहीं था, वो बनाया गया है। तो जो चीज क्रिएटेड होती है, बनाई जाती है, उसके बारे में प्रश्न पैदा होता है किसने बनाया। परमात्मा के बारे में सवाल ही नहीं पैदा होता। वो समय और काल और देश सबसे परे हो,
बियॉन्ड ऑफ टाइम एंड स्पेस है वो, इसलिए उसके बारे में इस तरह सवाल नहीं पैदा होता। वो कोई जात नहीं रखता, जिनसे इसे बालातर है वो। अब अगर कई परमात्मा आप मानते हैं, शक्ति बढ़ जाएगी, विभक्त हो जाएगी। अगर परमात्मा 2 हैं 3 हैं, इसका मतलब शक्ति बढ़ गई। जब शक्ति बढ़ गई, शक्ति अपार नहीं रही, वो सर्वशक्तिमान नहीं रहा। जब सर्वशक्तिमान नहीं रहा तो फिर अनाथकालिक नहीं, फिर हमेशा अजली नहीं हुआ, हमेशा नहीं, फिर भी क्रिएटेड हो जाएगा। तो सर्वशक्तिमान होने के लिए जरूरी है कि वो एक हो। 2 आई 2 आए, शक्ति विभक्त होगी, बढ़ जाएगी। अपार शक्ति के लिए तन्हा मालिक हो ममलिकत का, वही हो अव्वल और आखिर, ज़ाहिर और बातिन हो। हिम्दिल मुल्कुल यौम, बादशाही किसकी है? उसकी है। ये जरूरी होता है। इस बात को लोग नहीं समझते। बड़ी आसानी से कई इलाह बना लेते हैं। ईसाइयों ने कहा कि सन ऑफ गॉड है वो, किसी ने कहा उज़ैर सन ऑफ गॉड है। सोचा नहीं कि जब सन हुआ तो गया परमात्मा की जो औलाद होगी तो भी परमात्मा होगी, उसी जिन्स की होगी। तो जब औलाद होगी तो शक्ति बढ़ गई, उसकी चली गई विरासत में, तो परमात्मा क्या हुआ? वो बेनियाज है इन चीजों से। वो बाप बेटे पैदा करता है, खुद इससे परे है। वो खाता नहीं, खिलाता है, कोई उसको पालता नहीं, वो पालता है लोगों को, रब है वो खुद बेनियाज है, बेपरवाह है, परम स्वतंत्र है। वो जानना चाहिए। शिर्क जो है, बहुदेववाद जो है, खुदा की महानता के बिल्कुल विरुद्ध है। इसी कुरान में कहा गया है, इन्न शिर्क जुल्मुल अजीम। शिर्क मामूली गुनाह नहीं है, ये जुल्म अजीम है, महान अत्याचार, अन्याय है, मामूली नहीं है, अक्षम है, इसे कभी क्षमा नहीं किया सकता। इसलिए कि कई खुदा, कई आराध मानने का मतलब क्या होता है? बातिल कर दिया आपने कायनात को, जिंदगी को बातिल ठहरा दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया आपने, उसकी योजना को फेल करना चाहा आपने, असफल बनाना चाहा। ये गुस्ताखी है, ये ढिठाई